Still we put out an opinion poll. देखिए, आपने जो कहा कि बड़े ठेकेदारों को काम मिल रहा है, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है कि अगर हमारा रोड का कोई भी प्रोजेक्ट बनता है, क्योंकि मैंने इस पर बहुत डीप स्टडी की है। सपोज दैट अगर हमने 12,000 करोड़ रुपए का ऑल वेदर रोड का प्रोजेक्ट यहाँ पे किया, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि 80-90% पैसा वहीं घूमता है। आप कल्पना करिए 2017 से पहले अगर हम हरिद्वार और यहाँ आते थे, अपना देहरादून आते थे, 2-2 घंटे लग जाते थे, इतना जाम रहता था। आज सड़क इतनी सुंदर है कि आप 30-35 मिनट में पहुँच जा रहे हो। आप अब कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में आप जाइए, जहाँ मैं खुद जब पिथौरागढ़ से आता था 18 घंटे लगते थे अपनी गाड़ी से आने में। आज मैं उस 18 घंटे की दूरी को 10 घंटे में तय कर रहा हूँ। फिर ऐसा क्यों है सर कि देहरादून में बेरोजगार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? अभी मैं गैरसैंण गया था राजधानी पर रिपोर्ट करने, वहाँ पर 5-5 एक परिवार के लोग बेरोजगार हैं, तो कहीं ना कहीं तो असफलता हुई। हेलो एंड वेलकम टू द मॉर्निंग शो, अनदर इलेक्शन शो का बहुत स्पेशल सेगमेंट जहां हम मॉर्निंग न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं और जिस शहर में हैं उनके कुछ लोगों से बात करते हैं। वी हैव 2 वेरी स्पेशल गेस्ट्स एंड वी आर इन फैक्ट इन द हाउस ऑफ आवर वेरी स्पेशल गेस्ट अनूप नौटियाल. Thank you so much for calling us to your house. Most welcome. It's beautiful here. And Anoop is a social activist. On Twitter, he says he's rooting for Uttarakhand. So we are very excited to meet him. He's also running an organization जिसका लंबा चौड़ा नाम है. What is the name? SDC Foundation. SDC, which is Social Development for Communities. And that's based in Dehradun. Yeah. And we have with us Tania Seli Bakshi. That's correct. She's a former NDTV journalist, left journalism, Yes. and has been in Landor now. Yes, that's correct. Running my own news portal. Running her own news portal, which is Uttarakhand's first bilingual news portal. It's called the News Post. That's correct. Yeah. And she's also manages a literature festival, which is Words of Valley. Valley of Words. Valley of Words. Literature Words Festival. of Valley, Manisha. It's got to do with the Doon Valley. The So Valley of yeah, Words. Valley of Words. Valley of Words. Also, Atul is not with us today Yeah. because he's gone to report a story with Ridesh. Haan. You must have seen him yesterday, and he was talking about ghost villages and Yeah. Chardham. So, they've gone away for that. Atul and Ridesh are both in Pauri, and they'll be back today. They'll be doing a story on ghost villages. So that'll be exciting. Yeah. And first- Lippy is also with them. Yeah. Must mention, yes. The first clip that you saw at the beginning of this video is an interview with the BJP in charge in Uttarakhand. That will be out soon, so please watch that. I want to first come to Tanya. So in Uttarakhand, हमारे women और male voters almost equal हैं. Huh? There's not much of a difference. Yes. But you hardly, you know, in the election discourse, there's not much conversation around them. There are not many faces. Well, you know, I think that's the irony. Every campaign or revolution that Uttarakhand has seen, be it the anti-liquor campaign, you had Tim Charimai, and then the Chipko Andolan, you had Gaura Devi, and then even when we had this fight for a separate statehood, we had 2 women casualties from Mussoorie, Hansa Dhanai and Hemlata Chauhan. But when it comes to state politics, women are only seen on posters or in rallies. You never see them otherwise. You know, the ticket distribution, even by your leading, be it the Congress party, you have 5 tickets given to women candidates, AAP and BJP 8 each, and then rest of them, 24 of them are on independent candidates, you know, routing for Uttarakhand but doing it on their own. So women have always been there for the rallies, for all the campaigns, anti-liquor, Ped Bachao, Uttarakhand ke liye. But when it comes to giving them votes or giving them that political, you know, putting them on a pedestal or giving them any kind of helm, power, Yeah. you know, And it's in fact, missing. It's interesting to note, you were telling us that last election, more women came out to vote than men. Vote, yes. And What is the number? Do you guys know? उस समय 58.2 is what I remember. I'm not too sure. Wow. But also in 2017, there were 72 women candidates who were, you know, in free for elections. And now we're down to 45. Okay. So And it's appalling, you know. and mostly इस बार जिनको टिकट मिला है वो इंडिपेंडेंट ही मिला है. All the women 24 mostly were है जो 24. इंडिपेंडेंट है, जो 24 मातृशक्ति है, Yeah. उत्तराखंड की मातृशक्ति. Okay. जब पॉलिटिक्स की बात आती है, जैसा लोग इनफैक्ट बातेंगे. इसको मैं अगर मैं बात को तानिया की बात को और आपके सवाल को अगर आगे बढ़ाऊं तो देखिए हम जानते हैं उत्तराखंड में 70 सीटें हैं. तो एक चीज़ है जो हम प्रोग्राम शुरू होने से पहले बात कर रहे थे, एक चीज़ तो ये है कि आपके
जो इलेक्टोरल लिस्ट है उसमें कितने लोग हैं, लेकिन उसके अलावा जो दूसरी बात है कि कितने लोगों ने एक्चुअली जाके वोट दिया। तो जैसा आप जानते हैं भाई 70 सीट हैं उत्तराखंड में। हम जब 2017 के चुनाव की बात करते हैं जो पिछले 5 साल पहले हुआ था, उन 70 सीटों में 37 सीटों पे महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाला था। तो 37 सीटों पे महिलाएं और 33 सीटों पे पुरुष। अब इसको अगर हम और आगे बढ़ाएं, हमारे प्रदेश में 13 जिले हैं और 9 जिले हमारे जिसे हम कहते हैं पूरे पर्वतीय हैं, जहां पर 34 सीट है। उन 34 सीटों में, और इसके देखिए फिर बहुत सारे इसके पहलू हैं अलग अलग, उन 34 सीटों में 33 सीटों पे महिलाओं ने ज्यादा वोट डाला था। अब ये क्या इशारा करता है? ये एक इशारा तो बहुत बड़ा करता है पलायन की तरफ, जैसा जग जाहिर है कि उत्तराखंड में पलायन बहुत है, विशेष तौर पर पर्वतीय इलाकों से पलायन बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात मनीषा आपके साथ में और तानिया मेघनाथ आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि पर्वतीय इलाकों में महिलाओं ने सिर्फ ज्यादा वोट ही नहीं डाला, लेकिन औसतन 5116 ज्यादा महिलाओं ने हर सीट पर वोट डाला है। तो जो एक एवरेज था 51,000 वोट पड़ा था इन 34 सीटों पर, उन 51,000 वोट्स में से 28,000 महिलाएं, 23,000 पुरुष। तो जहां पर 51,000 वोट पड़ रहा है, ये 5,116, ये एक छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। यहाँ पे टोटल वोटर्स आप बता रहे थे कुछ 82-83 लाख। जी देखिए इस 2022 के चुनाव में अगर उसको हम राउंड ऑफ करते हैं तो 83 लाख वोटर जो सर्विस वोटर्स को मिला करके बनते हैं, तो 83 लाख वोटर हैं। और जो 10 साल पहले उत्तराखंड में चुनाव हुआ था 2012 का, उस समय 64 लाख वोटर हमारे प्रदेश में थे। राइट। और एक we'll come back to issues of women, what are the key concerns, but it's true, like when you go to the hills, on the fields you mostly see women working, shops में भी women are running the show बहुत ज़्यादा। hills की बात करें, जी I think men mostly या तो फिर वो सर्विस के लिए नीचे आ जाते हैं, and mostly men you see also are older, you don't see many young men, और या tourism में, so women are really the backbone of Uttarakhand, especially the hill economy, a huge vote bank, but absent from much of the election talk. Even when you see the front page, it's mostly men. इसमें भी ना एक छोटा सा मैं बिंदु ऐड यहाँ पे करना चाहूंगा। वो तो खैर पूरे राष्ट्र में वो वाली एक किस्म से हमें वो सोच देखने को आती है, लेकिन हम तो आज उत्तराखंड की चर्चा कर रहे हैं, उत्तराखंड में बैठे हुए हैं। अधिकांश महिलाओं को भी जो टिकट दिया गया राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ से, जो बड़ी पार्टियां, जो दो दल बीजेपी कांग्रेस, तो अब की बार तो इस चुनाव में जैसे हम कहते हैं वंशवाद या परिवारवाद, वो बड़ा हावी रहा है। अगर आप बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने 8 महिलाओं को टिकट दिया, बीजेपी रूलिंग पार्टी है। उन 8 में से जो 4 हैं अपने परिवारों की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। So they are all बहुs और बेटीज। 4 नंबर तो 4 बोलने में बड़ा कम लगता है, लेकिन उसको मैथमेटिकली देखें तो 50% exactly. आधी टिकट तो जो है वो फिर वो same in Goa also. We saw that a lot of the wives got tickets. So maybe we can just look at a few headlines at Amar Ujala. So one of the interesting headlines that actually Anoop only pointed out was an article here which says जमीन के ताबड़तोड़ सौदे से बदल रही है सियासी जमीन. So as Anoop had pointed out, there has been an explosion of voters increase in certain areas of Uttarakhand, especially the plains areas, right? So can you just elaborate on that a little bit? I feel like it's very interesting because you have to understand that Uttarakhand, I was yesterday with Himanshu Arora, he's an environmentalist. He had a very interesting thing to say, कि especially from Dehradun, all the young people are moving out and all the people from Delhi are coming and settling in Dehradun. So there's like a two-way migration reverse migration. And he said that एक तो यहाँ पे there are no limits to how much land you can buy, plus it's cheap. So a lot of Delhi people, especially like upper middle class rich people, they're buying land here and building cottages and like trying to settle in Dehradun, like a summer home or whatever they are trying to do. So it's becoming like a Shanti Niketan. But you have a limit, ना? उत्तराखंड में you can't buy. कुछ तो भी नाली है. हिमांशु की बात से देखो वो फिर एक अब चुनावी मुद्दा भी इस बारी बहुत बड़ा मुद्दा है, जो भू कानून का मुद्दा है, वो लैंड लॉस का मुद्दा है। इसको मेघनाथ आपके व्यूअर्स के साथ में भी थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए, देखिए उत्तराखंड में जैसे हमने कहा भाई 70 सीटें हैं, 70 सीट हैं कहाँ पे? तो 13 जिले हैं उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के जो हमारे जिसको हम मैदानी जिले बोलते हैं, जो बेसिकली जो प्लेन लैंड है, तो सबसे ज्यादा सीट 11 सीट हरिद्वार में आती है, देहरादून जिले में 10 सीट आती हैं, जिलों की बात कर रहे हैं, उधम सिंह नगर जिले में 9 सीट आती हैं, और नैनीताल जिले में 6 सीट, उसमें 1-2 पर्वतीय हैं। तो ये 36 सीट मोटा मोटा जिनको हम मैदानी जिले कहते हैं, और 34 सीट हमारी प्लेन्स में, पहाड़ों में।
अब ये एक्चुअली इसके फिर बहुत सारे डायमेंशंस हैं। तो जिस अमर उजाला में जो आज की खबर छपी है, इसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो बेसिकली मैं सिंपल वे में कोशिश करूंगा, हमने पिछले 10 साल के इलेक्टोरल डेटा को देखा, जो 2012 का जो चुनाव था और 2022 का चुनाव। जैसा मैंने पहले कहा, 2012 के चुनाव में उत्तराखंड में 64 लाख वोटर थे, इस चुनाव में 83 लाख वोटर हैं, तो 19 लाख वोटर, यानी 30% वोटर बढ़ गया है। 30% वोटर, और मैं यहाँ पे यूपी से भी कंपेयर करना चाहूंगा, ये बड़ा रोचक है। ऑफ कोर्स यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, लेकिन अगर मैं गलत नहीं बोल रहा, यूपी में पिछले 10 वर्षों में जो वोटर बढ़ा है, लगभग 18-20% बढ़ा है। उसकी तुलना में उत्तराखंड में 30% वोटर बढ़ा है। 30% इंक्रीज इन वोटर्स इन जो बढ़ उत्तराखंड। रहा है मनीषा, इसका मतलब लगभग हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी जनसंख्या भी 30% बढ़ी है, क्योंकि सेंसस तो आया नहीं है। जी। अब सवाल मेघनाथ ये उठता है कि भाई अगर 30% वोटर बढ़ा है तो ये क्यों बढ़ रहा है, ये कहाँ बढ़ रहा से है, आए? क्या ये लेकिन यूनिफॉर्मली स्प्रेड है? एक और रीजन हो सकता है, आई मीन आई एम जस्ट पुटिंग इट आउट देयर, कि मे बी रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स भी बढ़ गया होगा यहाँ पे इस बार, लाइक 10 साल में मे बी मोर पीपल आर अवेयर, मोर पीपल वांट टू वोट। नहीं, वो तो देखिए एक नेचुरल प्रोसेस है, वो तो पूरे देश में ही है, लेकिन उसके बावजूद 30% बढ़ना, एक तो 30% वाली बात, और दूसरी बात, अगर हम वापस खबर पर लौटें, अब 70 सीटों में तो यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ा ना, तो कुछ सीटों में ज्यादा बढ़ा है। अब उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड की, जिसको हम यहाँ की भाषा में कहते हैं ना हॉट सीट, एक धर्मपुर यहाँ पे हॉट सीट है। धर्मपुर उत्तराखंड की एकमात्र सीट है जिसमें 2 लाख से ज्यादा वोटर है। ओके। धर्मपुर में 2012 से 2022 में 72% वोटर बढ़ा है। 72%, हाँ। और ये जो जिन 10 सीट्स का नाम उस खबर में लिखा हुआ है, ये सभी मैदानी सीटें हैं। हाँ। उत्तराखंड में जमीन का ताबड़तोड़, जिसको कहते हैं कारोबार होता है। अब इसमें फिर बहुत सारे डायमेंशंस हैं, भाई पहाड़ से लोग पलायन कर रहे हैं, यूपी के जिलों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जिसका आपने जिक्र किया, तो ये तमाम पहलू हैं। तो ये जो वोटर, आप उसको वोटर इन्फ्लक्स बोल लीजिए, आप उसको पॉपुलेशन इन्फ्लक्स बोल लीजिए। सो ब्रॉडली वी कैन से दैट हिल्स में वोटर्स कम हो रहे हैं। हमेशा से कम थे, या फिर देखो हमेशा से कम कंपैरेटिवली उतने नहीं बढ़ रहे हैं। ओके, कंपैरेटिवली उतने नहीं बढ़ पहाड़ रहे में नहीं। हाँ, बट पहाड़ में भी बढ़ रहे हैं वोटर्स। हाँ, पहाड़ में भी वोटर बढ़े हैं, इस 2012 की तुलना में 2022 में पहाड़ में भी बढ़े हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना बट हिल चाहूंगा। में एक्सप्लोजन लेकिन हुआ है उदाहरण के तौर बेसिकली, पर सॉरी प्लेन्स में। एक और इंटरेस्टिंग सल्ट यहाँ विधानसभा है, पे, हाँ। सल्ट, साल, जिसका आप देख रहे हैं। 8%। सल्ट में 2017 के चुनाव में पूरे प्रदेश में सबसे कम वोट सल्ट विधानसभा में पड़े थे। जो कि अल्मोड़ा जिले में आती है। जी। वहाँ पे 46% चुनाव वोट पड़ा। और हम वोटर इंक्रीज भी देखते हैं, तो सबसे कम वोटर इंक्रीज भी सल्ट में हो रहा है। तो बेसिकली कहते हैं ना, इन अ वे, सिंपल वे, यू नो, maybe the analogy is not very perfect, but the rich are getting richer and the poor are getting poorer. So I think उसको हम उस तरीके से थोड़ा बहुत देख सकते हैं। Tanya, I just wanted to come to you on issues of women voters, like we'd spoken. What are the key issues that you think concern women here, and especially women in maybe the hilly areas or not well-to-do? Well, to be very honest, the issues are very basic. It's everything that is related to the home and the hearth. Okay. Cylinders, for as an example, every person that I come across, every woman in the village, especially in the hills, a cylinder costs them 1,100 rupees. Yeah. So to run a kitchen, and then the pandemic, you have young kids who are unemployed, you have men coming back, you have reverse migration, people don't have jobs. So the one who's actually hit is the one who actually manages the budget, the home budget. So it's not, the issues are very basic, but it's something that really touches the core of the existence, For a woman to have a child who's 22 years old, for whom they took a loan, send them to Maldives to get into a hotel, paying 3 lakhs to get there, and then the child comes back home and, during the pandemic, there's no employment. So, the issues are very basic, but What they are about very... alcoholism? Is that a huge issue? Alcoholism in terms of men? was... Is that- you had this anti-liquor thing and women coming out in that, but that I somehow see missing, I don't think so it's an चुनाव issue के now. दौरान जो शराब और नशे का जो चलता है, वो उस तरीके से है। और जैसे हम आजकल, क्योंकि इतने सारे अखबार लेके हम बैठे हुए हैं, आजकल अखबारों में ये बड़ी खबरें आती हैं कि भाई उत्तरकाशी जिले में 5,600 बोतल बिक गई, यहाँ पर बोतलें बिक गई, तो उस किस्म की। Yeah, a lot of bootlegging happens around But election. are women having to deal with that at home, like Not at the really. domestic front, in terms of? शराब निश्चित तौर पर, देखिए शराब तो आजकल के समाज में खाली उत्तराखंड के सभी जगह ही है, लेकिन कोई शराब इस समय मैं मुद्दा नहीं है। इशू की मैं इशू बास्केट It's not, yeah. जैसे बिहार में वो एक इशू है। नहीं। उस तरीके का शराब का एक दूसरा लेकिन एंगल यहाँ पे तानिया, ऑफ कोर्स दूसरा ये है कि जो
यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो शराब और Economy, खनन के इर्द गिर्द घूमती है, तो वो फिर उसका एक दूसरा डायमेंशन है, लेकिन उसको हम चुनावी दृष्टिकोण से देखें तो इन दैट इश्यू लिस्ट No, it's not an issue. So what do you think? Political like, agenda. what are the key issues? I mean, for everyone, men and women. You think? मनीषा देखो, आपने मेरे दिल की बात छू ली है। इसको मैं देखिए 3 तरीके से इसका मैं आंसर देना चाहूँगा। देखिए, एक तो इश्यू है, एंड ऑफ कोर्स आई नो वी हैव टाइम कंस्ट्रेंट्स, यू नो, सो आई विल बी वेरी ब्रीफ और आई विल ट्राई एंड बी ब्रीफ। तो एक तो जो है कि लोगों के इश्यूज, सो दिस इज लेट्स से वन बास्केट। Yeah. द अदर इश्यू इज, अगर उसको हम थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, कुछ इंटेलेक्चुअल इश्यूज भी हैं दैट वी कैन कॉल दी, यू नो, जो कि हमेशा Vision for the state, like what is the state going towards? विजन मीन्स व्हेन वी लुक बैक अहेड, बट उत्तराखंड में एक जो बहुत बात होती है, यू नो, पीपल टेंड टू लुक बैक कि यार उत्तराखंड बना किस लिए था, उत्तराखंड की मूल अवधारणा कहती है, तो ये थोड़े से जिसको हम बौद्धिक इंटेलेक्चुअल कहेंगे। और तीसरी बात ये है कि इन चीजों के इतर राजनीतिक दलों ने क्या मुद्दे बना दिए हैं, Okay. और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इसमें मैं थोड़ा सा मैं अपनी कुछ So quickly tell us all three. मैं तीसरे से शुरू करता हूँ। मेरा एक अपना एक छोटा सा एब्रिविएशन है, मैं इसको पीपीपी कहता हूँ, पीपीपी। अब आप कहोगे यार पीपीपी क्या है, हमने तो पीपीपी हेल्थ केयर में सुना था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, या हमने तो रेलवे के प्रोजेक्ट में सुना था, इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन हम पीपीपी देखते हैं राजनीति में पोलराइजेशन, प्रोपेगेंडा और पॉपुलिज्म। तो उदाहरण के तौर पर जो लोगों के मुद्दे थे उसको छोड़ करके जो 2 बड़े राजनीतिक दल हैं इस समय, आपको पता ही है, तुष्टि जो कहते हैं ना भाई, दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि तुम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो, तुम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो, लेकिन ये लोगों के मुद्दे नहीं है, ये उनके अपने मुद्दे हैं, मुद्दे थोड़ी हैं, ये तो वो उसको आपको पता ही है, वो एक यहाँ से हट करके वो चीजें यहाँ पर आ गई जी। और लोगों के मुद्दे वही, जैसा तानिया ने कहा, तानिया ने सिलेंडर का जिक्र किया, बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, शिक्षा, भू कानून की हमने पहले बात करी, पलायन एक मुद्दा है, भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, पर्यावरण एक मुद्दा है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर एक मुद्दा है, गैरसैंण की राजधानी एक मुद्दा है। क्या पर्यावरण सही में मुद्दा है? पर्यावरण मेघनाद मुद्दा है, लेकिन उत्तराखंड के 83 लाख लोगों में से एक बहुत कम लोगों में वो उसका वो हावी होता हुआ मुद्दा नहीं है, बड़ा मुद्दा। और इसमें एक छोटा सा उदाहरण, आखिरी उदाहरण, आप अगर कांग्रेस की पंचलाइन भी देखेंगे, उत्तराखंडी स्वाभिमान 4 धाम 4 काम, तो उस 4 में से 2 चीज तो महंगाई से है, एक तो जो तानिया ने जिक्र किया गैस का सिलेंडर, और दूसरा जो कांग्रेस का एक जो वो वादा कर रहे हैं कि भाई हम लोग कुछ इतना पैसा देंगे, तो वो दोनों के दोनों जो हमारे महंगाई के डोमेन में हो गए, एक रोजगार का हो गया और एक स्वास्थ्य का हो गया। तो यही जो है उत्तराखंड के, और अभी भाजपा का घोषणा पत्र नहीं आया अभी। And what about the intellectual issues that you were talking about? इंटेलेक्चुअल इशू तो मनीषा देखिए, एक सिंपल ये है कि भाई इस राज्य का गठन किस अवधारणा, जिसका तानिया ने भी जिक्र किया, भाई इस राज्य का ये एक पर्वतीय राज्य है, ये एक पहाड़ी राज्य है, तो यहाँ पर जो पहाड़ के मुद्दे हैं, जिस चीज के लिए इस प्रदेश का गठन हुआ, जिस चीज के लिए लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, इतनी शहादत दी, तो वो एक बड़ा इमोटिव इश्यू है उत्तराखंड के लिए। और उस पर्सपेक्टिव से एक जो कहते हैं ना, उत्तराखंड का इंसान अपने आप को छला हुआ पाता है। और ये वेदर इट्स कांग्रेस, बीजेपी, XYZ पार्टी, एवरीवन बिलीव्स दैट यू नो वी हैव नॉट मैनेज्ड टू लिव अप टू आवर पोटेंशियल। तो ये थोड़े से यू नो फिर देन उससे ही जुड़ते हुए इश्यू हैं। सो ये इश्यूज हैं, यू नो, 11 चीफ मिनिस्टर, 12 चीफ मिनिस्टर, इंस्टेबिलिटी, यू नो, ये इंस्टेबिलिटी क्या, ये एक राजनीतिक प्रयोगशाला बन गई है। 80,000 का कर्ज उत्तराखंड के ऊपर है, कहाँ आगे उत्तराखंड जाएगा? अब ये नई बातें निकल करके आ रही हैं, सेंसस तो हुआ नहीं है भाई, अब इतने ज्यादा हमारे वोटर बढ़ रहे हैं, तो एक जो कल्चरल उत्तराखंडियत की बात जो है इस चुनाव में हो रही है, तो इस किस्म के भी जो गंभीर मुद्दे हैं, What is it being in Uttarakhand? जैसे जो मतलब अब हमारे को रेट्रोस्पेक्ट में मजाक ही लगता है कि हम लोगों ने मांगा था उत्तराखंड, मिला उत्तरांचल, मांगा देहरादून, दिया हमें उधम सिंह और हरिद्वार। You know, so the soul of this pahadi state or a hill state has been lost to this game of politics, you know that. And you guys have a new ambassador, by the way. Yes, I this believe is Dehradun Jagran. No. No, thank you. We'll talk about that. As an Uttarakhandi, I take insults. Yes. Yati. He can be like, I don't know. No, I mean, I'm laughing about it, but he got bail. We'll talk about that. So Akshay Kumar ने स्वीकारा उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनने का प्रस्ताव. So he's going to be your new brand ambassador. We have had lots of those brand ambassadors who, you know, we had Dhoni, जिसे हम उत्तराखंडियों ने बड़े प्यार से अपना दामाद बना लिया था. And now we have Akshay Kumar. But Dhoni is also from Garhwal, right?
Well, but This he region. never अभी says अभी that. ऋषभ पंत को भी बनाया था हाँ इन्होंने, हाँ, ऋषभ पंत रुड़की से हैं. रुड़की से। अच्छा So they, I don't know, हम बोल देते हैं बड़े गर्व से, but these people never acknowledge it. मनीषा, मैं तो चाहूंगा मेघनाथ को बनाओ आप उत्तराखंड के एम्बेसडर। क्या बात है, घूम रहे हैं क्या बात है। मेघनाथ क्यों, मैं देहरादून से भूमि का I'll ambassador. wear the shawl yesterday. Lots of comments said like Like, बहुत you know, बाबा टाइप लग हम रहे लोग हैं। इतने सिंपल लोग हैं, मतलब हम अभी 26 जनवरी में जब ये हमारा राजपथ पे वो चल रहा था परेड एंड एवरीथिंग, every Pahadi was so proud of Shri Narendra Modi ji wearing the Pahadi topi. अच्छा, that had an impact. Impact We is an spoke about this understatement. yesterday. Wow. It took over every This is- social media. तो ये भी तो दोनों ने वही वाली पहनी हुई है। This topi. Every ad has Modi ji with the Pahadi topi. So And this people is the like it, Republic huh? Oh, Day they love photo. it. और ये आपकी टोपी मसूरी से ही तो है और आपके, हमारे हैं? मसूरी से है, सोहम वाले बनाते हैं, and the thing is, it doesn't take much for an Uttarakhandi to be proud of, There's certain things, these nuances, everyone knows it's a political शरीफ gimmick. लोग हैं ना पहाड़ के लोग। Now all Modi has to do is come here and have aloo ka gutka with bhange ki chutney and Bas, raita, and people will be floored. आलू का गुटका। And It's a yeah, breakfast thing here. yeah, It's yeah. So Very that's very traditional thing. interesting because while people may laugh at him wearing different, kind Yeah, of it's like yeah. a political gimmick, the state, people actually do feel Absolutely. connected. Yeah, they do. Especially when you feel that center has neglected you or that you're a bit away from Delhi and you're not being heard. And the Prime Minister can do something as simple as wearing Wear a a headgear. headgear, and you are so proud ये- of And you're it. so proud of it. भाई to be fair to मुझे 5 बार वो केदारनाथ आ गए, हाँ. 4-5 बार वो केदारनाथ आए हैं बस, पिछले, तो वो उससे भी भाई लोगों के सेंटिमेंट्स में तो फर्क पड़ता ही है। This Tell is me actually something. important. एक question पूछना था. This whole Char Dham project that they're doing, the All-weather the road. expressway all-weather road. Now one of the things that I when I did the story yesterday was that building this expressway would make access to these places very easy, right? Huh. And Manisha, we were talking about this, about how a giant influx of people into these very fragile areas can actually have very long-term and very damaging effects. So my worry is that these Char Dham locations, कि हम जाते थे 2 दिन लगते थे वहाँ पर जी, पहुँचने जी। में, थोड़ा सा मजा आता था, ढाबे में रुक के खाते थे, ये करते थे. So a local economy used to benefit. Do you think any effect that will have any effect on the local economy on the way? And will it affect those areas like in a damaging way? देखिए निश्चित तौर पर जो पहले तो अगर आप ही की बात को आगे बढ़ाएं भाई, आज अगर आप एक सुपर हाईवे पे चल रहे हैं भाई, पहले तो आप धीरे धीरे चल रहे हैं तो जो बीच में चट्टियाँ होती थी तो लोकल इकोनॉमी को ढाबे होते थे, सब होते थे। अब आप कल्पना करिए कि आप बिल्कुल फराटेदार अपनी 50-60 की स्पीड पे चलते हैं, तो वो एक डायमेंशन है। मुझे लगता है उसके अलावा लोकल इकोनॉमी के अलावा जो पूरे पर्यावरण को लेकर के जो पूरी बहस है, और ये अपने आप में सुप्रीम कोर्ट में बड़ा, जिसे हम कहते हैं ना, बड़ा इट वाज वेरी वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड। इवन इन द सुप्रीम कोर्ट कमेटी 2 अलग अलग उसके वो जिसे कहते हैं 2 फाड़ हो गए थे। तो एक जो कमेटी के चेयरमैन थे उन लोगों की ये थी कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है, दूसरों का था नहीं भाई डैमेज नहीं हो रहा है। तो उसको लेकर के बहुत सारे, and this is such a long debate, Meghna, but one simple point, also the way this entire construction is happening, भाई जो आलोचना होती है, ये इतना मलबा, करोड़ टन मलबा निकलता है, जा कहाँ रहा है भाई, वो तो अल्टीमेटली नदी में जा रहा है ना, और फिर वो जो पूरी साइकिल और पूरी जो चेन है वो फिर फिर it's a vicious, it's a very vicious cycle. Yeah, it will have an adverse effect. It will. Well, we can, if we need to learn mistakes from the past, there's so many things that one can learn from. Disasters. Uttarakhand has been always made into the headlines because of these disasters. You had the Kedarnath in 2013, where everyone said that this was Shivji in demolition mode. He went out and, he actually, there were these places jahan pe, they put a cross saying it's an illegal building, en route to Kedarnath. And when this glacial thing came down, it actually took off all these illegal, buildings, encroachments around the riverbeds. So you're not supposed to be building on the riverbed. And the construction was only. And you had these visuals where this house tumbles down. I feel really sad. Even, like I've grown up in Uttarakhand, and Bhimtal, for example, we would go and it was pristine, just 2 shops or 2 dhabas, and you'd go eat there and come back. Now you go to Bhimtal, the whole lake is surrounded by Lakeview hotels, And I don't know if a place like that in fragile mountains, Kumaon and Gharwal, both new fragile mountains, can sustain this kind of rampant construction. जो आपने जो बात बोली, देखिए आज कल जो थी 7 फरवरी को उत्तराखंड में एक उसकी बरसी थी, पहली बरसी थी
ऋषि गंगा, Yeah. रेनी चमोली। ऋषि गंगा, yeah. You can ये- read our ये reports on तो it. अब ये भी सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। अब देखिए जो बेचारे जिन लोगों के परिवारों के कहते हैं ना भाई दीपक जी, बुझ बुझ गए, गए। उन परिवारों का क्या हुआ? क्योंकि ये अब आपका और ऐसे हजारों ऐसे गांव हैं, बहुत सारे गांव हैं जिनका रिहैबिलिटेशन होना है। केदारनाथ तो ये पीपल हैव अ टेंडेंसी टू फॉरगेट, लोगों भी भूल जाते हैं, जी। सरकारें भी भूल जाती हैं, प्रशासन भी भूल जाते हैं, दे आर बेसिकली लेफ्ट टू फेंड फॉर देमसेल्फ। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी बात जो आपने भीमताल का जिक्र किया, कैरिंग कैपेसिटी मेघनाथ, यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी का उत्तराखंड के प्लानिंग में कुछ है कहीं नहीं। कुछ भाई आप जिक्र मसूरी में नहीं। रहते हो जी, तो जी। चाहे वो मसूरी है, चाहे नैनीताल है, चाहे वो भीमताल है, चाहे वो देहरादून है, आज हम लोग बड़े खुश हैं कि भाई इतने हाईवेज बन रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में मेघना की दिल्ली से जो है अपना आप देहरादून तो 2 घंटे में पहुंच जाएं, लेकिन देहरादून के एक छोर से दूसरे छोर तक ही आपको 2 घंटे लग दो जाएंगे, घंटे लग I क्योंकि agree. आप देहरादून के अंदर ही चौक हो जाएंगे जी ना। जी This is बिल्कुल। very तो interesting. ये कैरिंग कैपेसिटी की जो बात Yeah. है, इसको लेकर के कहीं पर हमारी प्लानिंग में वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है। That's exactly what Himanshu was also saying कि आप ठीक है दिल्ली से आप तो 3 घंटे 40 मिनट में आ जाओगे यहाँ पे, बट यहाँ से मसूरी जाने के लिए आपको 2 घंटे और लगेंगे अरे, because there'll be such a giant traffic Every there. weekend, it takes at least 2 hours to 3 hours to get to Mussoorie. So And without the imagine. traffic, And how that this much is is when it? the traffic is not there. And that's this is 34. on weekends. This is weekend traffic. Oh. Weekend traffic. It's become so accessible. You have, people picking up cars late in the night, finishing their work on a Friday evening, and just they come to Oh. Mussoorie in 3.5 hours. They leave Mussoorie on Monday morning at 7 and they're in office at ये यार 11. ये ना बहुत ही खतरनाक, Yeah, इसके बारे में so- कोई गंभीरता से फिर भाई कैरिंग आपका वेस्ट है, आपका जी, पानी है, garbage कोई सारी है, चीजें तो जुड़ी waste हुई है, हैं, आपका sewage पोल्यूशन है, आपका सूएज है। आज देहरादून में इतना एयर पोल्यूशन जो है, Where Nainital has had water shortages in prime seasons Yeah. where there's no water in the There's city. no water in the city. And just to give context, Dehradun to Mussoorie is 35 kilometers, right? Yeah, 33. 33. Yeah, so and it 2 would- hours, 3 hours is It's mad. insane, and this is on a weekend. This is not peak season. This is not your June, July when you don't and can't enter Mussoorie. Mussoorie, Being, born and Um, brought up, and a lot of comments came on YouTube saying that we should do some stories focusing on these environmental issues. So we are doing those. I just wanted to assure you that we will be doing some reports on those. I think we should, we're running out of time, so we should, Headlines. 2 quick questions I have, and just one mention that we have with us a local paper from here today, Gharwal Post, which is mostly not really news of Gharwal. I don't see much of, like, I'd expect a lot of news from Gharwal, but that's not the case. It's mostly like, staff reporters writing stuff on, कि देश में क्या हुआ, लता मंगेशकर को facilitate किया, ममता ने, she's going to severe ties with IPAC. So it's not really focused on that. I think it's got like 2 BJP ads at the beginning. Would have been nice to have some local news, but we haven't had that in this. Now I want to just quickly, 2 quick questions I think they can take. Can I read the English headlines also quickly? Like Go 2 things. for it. Yeah. So Kejriwal has unveiled his 10-point agenda yesterday in Uttarakhand, and it is similar to what we spoke in Goa. He's going to give an employment allowance of 5,000 rupees, free bijli, pilgrimage to Ayodhya, Ajmer Sharif, Kartarpur Sahib, and making Uttarakhand the spiritual capital of Hindus all over the world. it And also he has spoken about it already increasing- is. It's already not is. something that- it's Like when you come in, there is a tunnel. It's There is a so- Dev Bhoomi yeah, mein aapka Dev Bhoomi swagat mein hai. aapka swagat And all the hai. dhams and Yeah. of course Of Ganga. course, there's nothing to be done. And there's a funny headline I want to read, which is battling snow-bound roads, politicians in hills skid and slide to reach voters, with some photos of them skidding and Very sliding. true. It's like Are they like on that पट्टे पे जा रहे हैं पट्टे क्या? पे जा Like- रहे हैं। like kids do it now. Yeah. Slide करते हैं And on the this third important lines. thing that has happened is Yati Narsinganand has gotten bail in the Haridwar hate speech case. I think there was one question about that. So I think my first question is actually to both of you as Uttarakhandis. This made national headlines. हरिद्वार का नाम बहुत बदनाम हुआ, उत्तराखंड का भी नाम आ गया कि उत्तराखंड में ये सब हो रहा है. How much of it is an issue in Uttarakhand, and how much of what was said in Dharam Sansad has resonance with people here? Like, is there this sense? No, I mean, well, such horrible things were said. I hope that's not true, but no, what's if your... I can answer that Yeah, first. The thing is, somehow the reason I left mainstream media is because anything which is negative makes it into the headlines, especially from place like here, hill state like Uttarakhand. There's nothing good, positive, these kind of stories, human interest, color stories, but one hate speech and it'll be headlines there. No one cares in Uttarakhand, to be very honest.
It was in the newspaper for 2-3 days, but that's about it. It does not impact the core of an Uttarakhandi. Because everyone, this is something which, this hate speech and these communal things, fortunately, hasn't touched Uttarakhandis yet. या मेरे को भी वही, मेरे को नहीं लगता कोई ये वो ठीक है अखबारों वगैरह में आया वो, लेकिन उसके बाद एक दो गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन इस चुनाव के माहौल में वो खत्म हो चुका है वो इशू, बट एक एवरेज उत्तराखंडी के लिए जो कुछ बोला गया कि मुस्लिम्स आर डेंजरस, वी नीड टू डू XYZ टू देम, इज दैट सेंटिमेंट देयर? पहली बात तो सेंटिमेंट ही नहीं है, दूसरा देखिए लोग भी समझते हैं कि यार वो उसका अपना एजेंडा है, वो अपने एजेंडा को प्रमोट कर रहा है, जो भी वो ऐसी बातें बोल रहा है, तो उसका कोई मतलब लोग यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल दिया. इट इज नॉट अ स्टिकी मैसेज. No, it doesn't register. It doesn't. Thank God, for Uttarakhand being what it is. We are very. It's a very. जो गंगा जमुना तहजीब की बात होती है, वो वाकई में यहाँ पर यहाँ पे देखने को मिलती है. बिल्कुल. So, okay, I guess our last question is, we have to have predictions. Yeah, predictions. We can't do an election show. कौन रहेगा, किसको मिलेगा राज तिलक? हाँ, ये सब तो हमें करना ही पड़ेगा. तो फाइट कांग्रेस और बीजेपी की है या आप भी कुछ कर रहे हैं? आप I don't think so ज़्यादा कुछ कर पाएगा. मतलब maybe a seat here and there, but I think the real contenders are BJP and Congress, and there's always an anti-incumbency which works in a small state, and we've seen it across the country. So I think it is a tough call, but let's see who wins. 10th of March, is it? 10th of March. Yeah. Your predictions. मनीषा देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो एकदम बोलना कि यार ये जीत जाएगा वो जीत जाएगा, क्योंकि 2017 में देखो सुपर क्लियर था. 2017 में सुपर क्लियर था कि बीजेपी इट वाज अ कंप्लीट राउट ऑफ द कांग्रेस. तो 17 क्लियर था, 19 का लोकसभा भी क्लियर था. अब की बार इट्स टू क्लोज अ कॉन्टेस्ट, एंड देन ऑफ कोर्स एज द इलेक्शन हैज प्रोग्रेस्ड मेनी थिंग्स हैव हैपेंड. आई थिंक इफ द बीजेपी हैड स्टक विद द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर व्हिच वाज त्रिवेंद्र सिंह रावत, दे वुड हैव लॉस्ट. ओके, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कमेंट. सो दे चेंज दैट. उनके खिलाफ एंगर भी था, देवस्थानम बोर्ड को लेके आप लोग पढ़ते होंगे, पुलिस को लेकर के था, तो बीजेपी ने उसको न्यूट्रलाइज किया. फिर कृषि कानून तो खैर एक पूरा राष्ट्रीय मुद्दा था, उसको भी न्यूट्रलाइज किया, भले उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं. और तो एक ये पूरा पहलू है, ये पूरा एक डिस्कोर्स है. दूसरी बात यह है कि मैं ये महसूस करता हूँ इस चुनाव में कि कांग्रेस एक 2017 की तुलना में इज फाइटिंग अ मोर ऑर्गेनाइज्ड इलेक्शन, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हैपेंस. ठीक है, उनके अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, 50 चीजें हैं, लेकिन 17 और 22 की तुलना में कांग्रेस आज ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है. अब वो कहाँ पासा पलटेगा, क्या होगा? भाई मोदी जी इज अ वेरी वेरी पावरफुल फैक्टर एज वी डिस्कस्ड अर्लियर. उन्होंने कल अपनी पहली वर्चुअल रैली कर ली है, वो कुछ और वर्चुअल रैलीज करने वाले हैं, आज भी है, इनफैक्ट भी आएंगे. नैनीताल में एक वर्चुअल रैली बोल रहे हैं. अब उनकी वर्चुअल रैलीज हैं, तो अब whether one likes it or one doesn't like it, but he is a popular figure here. Yes. People like him. बीजेपी उसको of course encash करेगी. और धामी, पुष्कर धामी ने निश्चित तौर पर जो बीजेपी का जो डैमेज उनके जो 2 मुख्यमंत्रियों से हुआ था उसको न्यूट्रलाइज करने में करा है. बट जैसे अगेन टू गो बैक, उत्तराखंड का इतिहास हर 5 साल में सरकारों को बदलने का है. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग भी ये मानते हैं अभी तो गवर्नमेंट चेंज होनी है. तो अब ये वही वाली बात है भाई, विच वे द कुकी विल क्रम्बल. सो इट्स टू, एंड इट्स नॉट दैट आई डोंट वांट टू आंसर और व्हाटएवर, और आई honestly I don't have an answer. It's too close a call. The last thing I wish to say is that as we all know, in each of these 70 seats, of course it's the battle for Uttarakhand, but it's the battle for these 70 seats. And then a lot of local, of course that's true in each and every seat, but with the entry of the Aam Aadmi Party, then there are independents, कई लोगों के टिकट कट गए. अब कौन सा कहाँ पर, मैं एक सीट का उदाहरण दूं, रुद्रपुर, वहाँ पे उन्होंने भाई उसका बीजेपी का एमएलए था, उसको टिकट नहीं दिया, और वो बड़ा एग्रेसिवली फाइट कर रहा है, और वो बीजेपी को नेचुरली वहाँ पर हर्ट करेगा. वो इंडिपेंडेंट फाइट कर रहा है. ऐसे हरीश रावत की जो सीट है वहाँ पर उन्होंने कांग्रेस में महिला को टिकट दिया, महिला ने जो है विड्रॉ नहीं किया, अब वो इंडिपेंडेंट है. तो ऐसे 70 मिनी बैटल्स अपनी अपनी जगह पर हो रहे हैं. अब कहाँ पर क्या उसका कहते हैं ना, कहाँ जाकर के वो थमेगा, कहाँ जाकर रुकेगा. Like, and what Anoop said right now is very important. In Goa, we saw this yesterday. Ridesh also pointed, for a small state like Uttarakhand, the local connect with the candidate, personal connect is so important, and the margins are so less that it becomes like a very neck-to-neck battle all the time. So it'll be interesting. 50,000 एक जाने से पहले एक उत्तराखंड में बड़ा, उत्तराखंड पूरे देश दुनिया में केदारनाथ का जिक्र होता है, थोड़ा सा उस सीट के बारे में भी चर्चा करते हैं. अब केदारनाथ की सीट में पिछली बार भी कांग्रेस के प्रत्याशी जीत करके आए, मनोज रावत.
अब वहाँ पर क्या है कि इस बार भी उसी किस्म का ही हो रहा है। वहाँ पे एक बड़ा पावरफुल निर्दलीय कैंडिडेट हैं, वो पिछली बार सेकंड आए थे। अब कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट को रिपीट किया, मनोज रावत को। वो सेम जो निर्दलीय है वो भी खड़े हैं, बीजेपी की भी प्रत्याशी है और आम आदमी पार्टी का भी है। तो अब 4 वोट कितना पड़ेगा? 50,000 वोट पड़ेगा। 50,000 वोट पड़ेगा और इन 4 के अलावा 2-4 और होंगे। और भी जरूर तो ये अब आप बोलिए कि यार आप बताओ कौन जीतेगा? ये My God, like a Delhi university. it's like a university election, you know. in So certain अगर seats. वो ना 1.5-2 लाख वोटर हो तो ठीक है, आप maybe you can take a call, you know. तो Wow, imagine 50,000 voters and like. Yeah, there's 7 candidates. Now I think I want to wrap the show up, but I don't want to leave without, because we have 2 people from the state here with this last question, which I feel really bad when people come from plains like you from Maharashtra and then come here and have chili paneer and chow mein. It's a huge tourist destination. But We had people it don't- yesterday. you know, so they go to these hill stations, you know, in Kumaon and Gharwal, and they'll have paneer and chow mein and all. और उत्तराखंड cuisine के बारे में कोई बात नहीं होती. It's not as क्या आलू famous. का गुटका? What were you saying? I want 2 suggestions from you. That bhai, if our viewers come to Uttarakhand and they go to either, you know, Nainital or Mukteshwar, or they, you know, go here for the Dham Yatra, what should they eat which is from here? Wow. Food. Food. Well, to be honest, in Mussoorie, all the 5-star hotels have a special Garhwali thali. Okay. Maybe the restaurants don't, but they have very nice thalis, and you have chosa, and you have your get ki dal and tur ki dal, and tur is like this Yeah. is good season for that, and you have your unpolished rice, and you have cholai ke laddu and ye apna kheer. You know, so there are places where jingore ki kheer. Jingore So ki kheer. I'm sure there are pockets now where you do get traditional meals. It's just that you need to Google your thing, and you need to have a flavor that you want to go there and you want to get this cuisine. तो अब तो मिलने लगेगा. ठीक है. You. आपका मैं वही ये इस बात को तो मैं एक अपील कर रहे हैं तो कैमरे में देख के मैं बोल देता हूँ। हाँ. और जो बाहर से लोग आएंगे, आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि उत्तराखंड में एक बड़ी पॉपुलर चीज़ है, उत्तराखंड का कई जगह है वो जिसको मैगी पॉइंट कहते हैं। हाँ. तो सपोज कल अगर मेघनाथ भी मसूरी के राउट That I have tried. That I तो have tried. अगर सपोज थ्योरेटिकली कल मेघनाथ भी अगर अपना एक चाय की दुकान खोल लेता है मसूरी रूट पे, तो ही विल कॉल इट मेघनाथ मैगी पॉइंट, जबकि उसका कोई मैगी से कोई लेना देना नहीं हो। Okay. तो अब यही है कि भाई आप दिल्ली से आ रहे हैं, चंडीगढ़ से आ रहे हैं, XYZ जगह से आ रहे हैं, तो आप मेघनाथ की जब दुकान पे जाएं तो Yeah. आप मेघनाथ को ये मत बोलें, एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट मैगी और व्हाटएवर, कि यार मेरे लिए मैगी बना दो, बट आप ये बोलें कि आप जो है मेरे को कुछ उत्तराखंड का खाना खिलाइए। अपना तो खाना, जब ये घर का। लोगों से ये वाली आवाज आएगी, और ये इसका बड़ा अपने ठीक है हम उसको हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंडी उत्पाद का, उत्तराखंडी फूड का, क्योंकि ये फिर से घूम करके पलायन, लोगों की अर्थव्यवस्था, जब हम लोग अपने ही खाने को ज्यादा खाएंगे, जब उसकी ज्यादा बिक्री होगी, लोगों में और आर्थिक तौर से संपन्न होंगे, और ये स्टेट के लिए बेटर I think it's a very good point, Yes. because people also need to feel pride in their cuisine and their culture, and Yeah. some of it can come when outsiders say, hey, we want to try what Yeah. you have तभी to offer. तभी No, we जो do. आपके जो हमारे जो दर्शक हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं यूट्यूब पे या बाकी जगह देखेंगे, उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि उत्तराखंड आएंगे, उत्तराखंडी खाएंगे। खाएंगे Uttarkhandi. बस. So ask for local food wherever you are, and Yes. tell people that you want to try their stuff. Thank you so much for watching this edition of Morning Show. We had a great time, and now we're going to have some tea. Stay tuned. We have a lot coming up from Uttarakhand. Keep watching another election show. सब देख लिया, अब ये देखिए. The subscription model is something that keeps newslaundry afloat, but we need hundreds of thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to newslaundry and pay to keep news free, और गर्व से कहो, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें.